Hi, very good morning all of you. My dear student, today we are going to discuss your class 12 history. Class 12 history, chapter Brick, Beads and Bone. Harappan civilization. My dear students, if you remember what we studied in our last class, we discussed in my last class the topic that was religion. Today we will try to understand the Indus script. Indus script. First of all, I would like to tell you that Indus script that was not read to till today, आज तक वो पढ़ी नहीं जा सकी. What was the reason behind that? क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है? इवन इंडस स्क्रिप्ट की कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे इट इज पिक्टोग्राफी, First, some students believe that it is sign language. साइन लैंग्वेज में बात, साइन लैंग्वेज नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ऐसे कहें ज़्यादा बेटर है. इट इज पिक्टोग्राफी. 475 word are signed in it. Third thing is that the largest inscriptions that was excavated or found was 27 word, स्पेशली 26 वर्ड लिखे, लेकिन 70 वर्ड्स भी आपको मिलेंगे. एंड स्मॉलेस्ट फोर टू सिक्स वर्ड्स. स्मॉलेस्ट में 4 से 6 शब्द हैं. जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है इंडस का, उसमें 26 शब्द हैं. ये पिक्टोग्राफिक थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंडस स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा सकती. दैट्स व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री मीन्स कि एविडेंस तो है, बट वी आर अनेबल टू रीड, वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन, वी आर अनेबल टू डिफाइन. माय डियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई द इंडस स्क्रिप्ट कॉल्ड इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. आपके बुक में एक टॉपिक है इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. व्हाई वी कॉल्ड द इंडस स्क्रिप्ट इज इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट? बिकॉज वी आर अनेबल टू रीड, बट इट हैज नेवर बीन इंडस स्क्रिप्ट के लिए पढ़ने के लिए उस पर कार्य नहीं किए जा रहे. द डिफरेंट हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ट्राइंग टू डिफाइन द इंस्क्रिप्शंस. वो चीजें, वो सारी बातों को लिखने का प्रयास करें. सबसे पहले जो रिटेन स्क्रिप्ट की बात करें अगर,
if we discuss about the written script in the whole civilization, which was contemporary Indus Valley civilization, without any hesitation we can say that the Mesopotamian civilization, it means Sumerian civilization, that was the first civilization they uses the written script. But what about others? दूसरे की क्या और लोग क्या किए? उसके बाद उसकी कंटेम्परेरी एक और इंडस में भी हमें ये चीजें दिखाई देती हैं. My dear student, as you know that if you will read your book, page number 15, where the one topic is given, seals, script and weight. If you will read the topic, seals and sealings, and the topic enigmatic script, both topic give you some information regarding the script, regarding something. Why I am telling you? Because first time when 1853, that was the time when one script was collected by Cunningham. Cunningham and his English man friend, he found a seal on which mention a bull. एक बुल की आकृति उस पे अंकित थी और उस पे कुछ शब्द लिखे हुए थे. ये पहली बार थी जब 1853 में कनिंगम को उनके मित्र ने दिया. इस पे कुछ लेख लिखा था. हालांकि इसका क्या मतलब था, ये सब जो कनिंगम को 1853 में मिले, 1853 में जो सील मिली, सील्स मिली, उस पे जो कुछ वर्ड थे 3 or 4, what was the meaning of particular that sign on word which is mentioned on that seal? They unable to interpret that, but meaning is that it is very clear information which they collected कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग स्क्रिप्ट का यूज करते रहे. As I told you in the starting of this class that the first time the script which was used by the human beings, that was the cuneiform मतलब उभारदार शब्दों को लिखा जाना. But in the starting of this class I was also mentioned that the Mesopotamian script was the cuneiform, but the Indus script was the pictographic. The vast difference between the cuneiform script and the pictographic script. One major thing is that no dual language script was found or collected or excavated from the any sites of the Indus or the Mesopotamian or the others which was interacted with the Harappan civilization. So that's why it was the major problem for the historians or archaeologists कि उन्होंने इसको पढ़ नहीं पाए, वो रीड नहीं कर पाए. अगर स्क्रिप्ट डुअल होती, एक स्क्रिप्ट द्विभाषी होती तो पढ़ा जा सकता था. जैसे मेसोपोटामियन लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि पढ़ी गई. माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो क्यूनिफॉर्म लिपि थी वो सबसे संसार की जो 4 ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट में एक थी और सबसे पहली मानी जाती है. उसी में इंडस स्क्रिप्ट को भी स्वीकार किया जाता है. अभी इंडस स्क्रिप्ट में मैंने आपसे कहा कि 475 आपके बुक में है. इट मीन्स मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा दूं. अगर आपकी बुक देखें तो व्हाट इज गिवन इन योर बुक? इन योर बुक द 375 to 700 बुक, 375 to 400 word. But nowadays the number of sign and the word that has increased, it became 537. अभी कितने हो गए? अभी जो वर्ड है या साइन है इंडस के, उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 537 हो गई. अब यहाँ पे एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लिपि है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट कैसे, इस स्क्रिप्ट को क्या माना जाए, इस स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा जाए,
कुछ इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की, इंडस स्क्रिप्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। कुछ ने कहा कि ये बोस्ट्रोफेडेन है, 5 को लिखिए, बोस्ट्रोफेडेन। बोस्ट्रोफेडेन जिसको क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, इस मेथड, बोस्ट्रोफेडेन मेथड में ये लिपि लिखी गई, दाएं से बाएं की ओर और फिर बाएं से दाएं की ओर, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा, क्या चीजें मैंने आपको बताई। तो so that's why I am saying, dear student, the script of Indus Valley, that was right and left to right. It means right to left and left to right. देखिए आगे ऐसी मान्यता थी प्रोफेसर बीबी लाल सर की। प्रोफेसर बीबी लाल सर ने इन चीज़ों को देखा और कि ये शब्द जो है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट है। मेरे कहने का सेंस क्या है कि कालीबंगा की खुदाई से प्राप्त एक मिट्टी की भांड पॉटरी के कुछ पार्ट मिले, टूटे हुए हिस्से मिले, जिसमें कुछ सिंबल बने हुए थे। इन सिंबल में जो पार्श्ववर्ती दाएं चिन्ह को काटता है उसी को आधार बनाकर ब्रजवासी लाल ने कहा कि सिंधु लिपि को दाहिने से बाएं की ओर लिखे जाने के बाद उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया। वास्तव में इस लिपि को लिखे जाने का जो तरीका था वो बोस्ट्रोफेडेन में था। इट मीन्स हलावर्त शैली, जिसे सर्पाकार शैली भी कहते हैं। सैंधव लिपि जो लिखे गए अभिलेख 3 पंक्तियों से अधिक बड़े नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, द इंडस स्क्रिप्ट दैट वाज नॉट स्पेशली कितने 3 लाइन से ज्यादा की स्क्रिप्ट नहीं है इंडस। तो 3 लाइन से ज्यादा की स्क्रिप्ट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 लाइन की से ज्यादा की स्क्रिप्ट नहीं है उसमें बेसिकली जो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है और 4 से 6 शब्द ही प्रयोग है। 17 वर्ड का एक स्क्रिप्ट है जो सबसे बड़ा। मौलाना से एक मिला जिसपे बड़े स्क्रिप्ट। तो ये तो जनरली चीजें हुई इसको पढ़ने के लिए। आई होप माय डियर यू आर गेटिंग understand that what I want to tell you, that this script is totally enigmatic script because nowadays we are unable to read this script, but a lot of historian, archaeologists and linguistics, language scholar, they try to read this. उसको पढ़ने का वो प्रयास कर रहे हैं अभी भी. If you will see your book where clearly mentioned that the Harappan seal usually have a line of writing probably containing the name and the title of the owner. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning of those who could not read. Most inscriptions are short, the longest containing about 26 signs, although the script remains under decipher. To date, it was eventually not alphabetical, where each sign stands for a vowel or consonant, as it has just too many signs, somewhere between 375 to 400. It is apparent that the script was written from right to left, as some seals was wider, the spacing of right to
comparing on the left, as if the engraver began the working from the right and then ran out of the space. Consider the variety of objects on which writings has been found, seal, copper, tools. तो ये चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण थी कहाँ से मिली? कंसीडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, सील, कॉपर टूल्स, rims of jar, copper and terracotta tablets, jewelry, bones, rod, even and the ancient signboard. Remember, three may have been writing on the perishable, the materials too. Could this mean the literacy was widespread? क्या मतलब था इसका? जगह जगह से कुछ सिंबल, कुछ स्क्रिप्ट मिल रही. क्या मीनिंग थी? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग्स? मीनिंग इज दैट कि वर दे लिटरेट? लिटरेसी इज वाइड स्प्रेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉट? एक बड़ा प्रश्न है, रिसर्च का विषय है. क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह ये जो भिन्न भिन्न चीजों के ऊपर सिंबल मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं, क्या ये स्क्रिप्ट थी? क्या था ये? इन चीजों के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि निश्चित रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग स्क्रिप्ट के बारे में जानते थे, उनका यूज करते थे. 26 वर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट आपको स्क्रिप्ट मिला, 3 लाइन्स से ज़्यादा की नहीं है. दैट इज द मेजर प्रॉब्लम आल्सो. अब यहाँ पे ये क्यों नहीं पढ़ी जा सकी, इसके बारे में बात करते हैं. Why Indus script is not read? Why we are unable to read the Indus script? Because one by one I am going to discuss the problem. That's why we are unable to read the Indus script. First of all, you have to understand the first causes why it is unable to read or explain. क्यों नहीं पढ़ी गई, क्यों नहीं इसको बताया, एक्सप्लेन किया जा सकता है? Why? The reason is that सबसे पहले फर्स्ट रीजन क्या है? पिक्टोग्राफिक है. सेकेंड, डुअल स्क्रिप्ट, डुअल लैंग्वेज स्क्रिप्ट. डुअल लैंग्वेज स्क्रिप्ट, इट मीन्स हड़प्पन प्लस इजिप्शियन और हड़प्पन प्लस यूनिफॉर्म और हड़प्पन प्लस अकारियन. इस तरह की लैंग्वेज नहीं मिली. स्क्रिप्ट वॉज या इज लिखे, इज नॉट फाउंड. थर्ड, पिक्टोग्राफिक है, डुअल लैंग्वेज में नहीं है, स्क्रिप्ट लंबी नहीं है. इन द स्क्रिप्ट word and sign और वेरी शॉर्ट. मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट जो है उसमें, लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट जो है उसमें 26 वर्ड है और जो छोटे हैं उसमें 4 to 6 वर्ड आते हैं.
छोटे में 4 to 6, लॉन्गेस्ट में 26 वर्ड। तो ये शब्द आपको ऐसे मिलते हैं। दैट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि नाउ टिल अ डेट कि हम अनेबल टू रीड दिस। और भी रीजन क्या इसको, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या किन किन विद्वानों ने इसे पढ़ा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी रीड दैट इंडस स्क्रिप्ट। इन द फर्स्ट स्टेज वी रीड कि इंडस स्क्रिप्ट क्या है, क्या इंडस के लोग स्क्रिप्ट का यूज करते थे या नहीं करते थे, वर दे यूज स्क्रिप्ट और नॉट, इफ दे यूज व्हाट वाज देयर स्क्रिप्ट, हाउ कैन दे एक्सप्रेस हिमसेल्फ। So no doubt, without any hesitation, we can say that the some evidences which was found, which was collected from the various site of Indus Valley civilization, were clearly shown the some word, some sign, some pictographic word that prove that they express himself with that. On the basis of that, historians believe that they were literate, they were able to express him with the help of that. And also we read that the oldest script, Indus script, is one of the oldest script in world-wide level, and cuneiform, that was the one of the oldest script. Cuneiform बहुत पुरानी थी, cuneiform की तरह ही Indus script को ही माना जाता है। I also discuss that कि how many word in Indus script, 375 to 400 word it is given in your book in NCERT, but nowadays 537 words came into existence. Second thing which I inform you that script is pictographic. Script writing style is the post-to-faded. It means right to left, left to right, right to left, left to right. गोमूत्राकार लिपि, या जिसको कहते हैं कि एक दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने लिखी जाने वाली लिपि थी। अब इन चीज़ों के बाद हमने कहा कि स्क्रिप्ट आज तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, स्क्रिप्ट के अभी तक न पढ़े जाने के पीछे का कारण क्या है। एज आई इन्फॉर्म यू दैट दीज वर द रीजन्स बिहाइंड द कि वी आर अनेबल टू रीड, दैट इज द पिक्टोग्राफिक साइन लैंग्वेज में भी the dual language script that was not found from any sides, from not only India but also the Indian continent, also the other continent, I mean to Africa, and except it or other point. Third thing is that script is script word is very short. Script is also short. The 3 lines script, that is the largest script, which is excavated 17 word in one script. It means what I am saying you कि स्क्रिप्ट छोटा है, स्क्रिप्ट में लिखे गए शब्दों की संख्या कम है। कोई भी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं मिला जो द्विभाषी हो, जो कहीं से प्राप्त हो, जिसमें 2 भाषा का प्रयोग किया गया हो। द्विभाषी मतलब एक ही स्क्रिप्ट में 2 भाषा में लिखी गई चीज़ें। एज आई नो इट इज़ वेरी इजी टू से दैट कि आप इस बात को समझते होंगे कि द्विभाषी का मतलब क्या है। ऐसी कोई स्क्रिप्ट इंडस्ट्री आज तक नहीं। अब हम देखेंगे किन किन विद्वानों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, कौन कौन इसे पढ़ने का प्रयास किया और कितने सफल हुए इसको। ओके, माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हड़प्पन लिपि थी, सैंधव लिपि थी, उसको लैग्डन और हंटर इसे ब्राह्मी लिपि मानते हैं। लैग्डन इसे ब्राह्मी लिपि मानते हैं। ब्राह्मी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड पॉइंट, एस आर राव, टी एस रामचंद्रन, टी एस रामचंद्रन, बैदल आदि इसे संस्कृत मानते हैं।
इसकी समानता संस्कृत से करते हैं। थर्ड, फादर रेवरेंड हैरिस टी बरो, फादर रेवरेंड हैरिस ई बरो, इसे द्रविड़ियन से इसकी समानता करते हैं। इसके अलावा आर केसो पारिपोला एक स्कैंडिनेवियाई थे। ये कहते हैं कि ये द्रविड़ियन से इसकी काफी समानता थी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, एक हटके का बैटरिज हॉर्जनी ने इसे क्या कहा? इसे भित्ति चित्र कहा, इसे रिलीफ स्क्रिप्ट कहा। और फिर भारतीय विद्वान आई महादेवन ने इसे कंप्यूटर की सहायता से पढ़ने का प्रयास किया। बट व्हाट इज द रिजल्ट? ये क्या हमने देखा? वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द इंडस स्क्रिप्ट, that is the pictography, why the, I mean to say that the who was the archaeologist, who is the archaeologist who tried to read this, who tried to explain this? One by one, the lander and hunter, ये इसे ब्राह्मी लिपि से संबंधित करते हैं कि ब्राह्मी भाषा के समान है, इसमें शब्द कुछ तो ब्राह्मी लिपि होगी। एस.आर. राव, टी.एस. रामचंद्रन इसे संस्कृत से संबंध करते हैं, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये संस्कृत कहते हैं। देन आफ्टर फादर रेवरेंड हैरिस और टी बरो इसे द्रविड़ियन के, इसकी समतुल्यता द्रविड़ियन से करते हैं। आर केसो पारिपोला जो एक स्कैंडिनेवियाई हिस्टोरियन थे, इन्होंने इसकी तुलना द्रविड़ियन स्क्रिप्ट से की, द्रविड़ियन लैंग्वेज से इसको की। बैटरिज हॉर्जनी थे, ये थोड़ा अलग हटके कहा, ये भित्ति चित्र है, दीवालों पे लिखी जाने वाली जो भाषा थी, लिप कला के रूप में करते थे वो। आई डी महादेवन ने इसको लिखने का काम किया, आई डी महादेवन ने इस पर खूब सारा काम किया। तो ये था हमारा लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। बुक में आपके कई तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड पूछता है कि राइट ए नोट ऑन द इंडस स्क्रिप्ट, हाउ कैन यू से दैट इट वाज इनिग्मेटिक, ये इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कैसे थी, या इंडस स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा करिए, इंडस स्क्रिप्ट क्या था। इन तमाम सारी चीज़ों की बातें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रिप्ट से बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सैंडा लिपि थी, हड़प्पन लिपि थी, जैसा कि मैंने कहा इसमें पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थी, इस लिपि में सबसे ज़्यादा जिस शब्द का यूज हुआ है वो यू शेप के हुआ है। और मछली, ये दो ऐसे साइन हैं जिनका सर्वाधिक बार इंडस स्क्रिप्ट में यूज किया गया है। इस स्क्रिप्ट की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत हमें जो हड़प्पा से मिली हुई सील्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से तांबे का एक चौकोर गोटी मिला जिसमें पशु चिन्हों के साथ लिखावट है। सैंडो लिपि का सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला पाया जाता है, परंतु यह अभी प्राप्त नहीं है। पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में अभी तक का उपलब्ध सैंडो सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख धौलावीरा से प्राप्त एक साइन बोर्ड है जिसमें 9 से 10 अक्षर है। तो सबसे बड़ा धौलावीरा
से प्राप्त एक साइन बोर्ड, जिसमें शब्दों की संख्या कितनी है? 10 एक साइन बोर्ड है जिसमें शब्दों की संख्या 10 दी गई है। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, कि अभी तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सकता। वी आर टोटली अनेबल टू रीड दिस, वी आर टोटली अनेबल टू एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट। सपोज व्हेन वी विल एबल टू रीड दिस, वी कैन easily understand their internal faith and belief. Nowadays, we only expect that what they did, but what was the exactly they did, they perform in their life, they practice in their life, we can't say. We can only assume, we can only expect that कि वो ऐसा करते रहे होंगे, वो ऐसा करते रहे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो ऐसा। लेकिन जब तक ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती तब तक ये सब कह पाना थोड़ा मुश्किल है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लास्ट टॉपिक को लेके, इंडस डिक्लाइन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।